Good morning, dear students. This is Alok Sakki. Today we will learn file handling part 2. In the previous chapter, we have learned about types of files, text files, binary files and some other files, and we have read how to open a file, how to read a file. In this class, we will see examples to open a file and closing a file. Let's start. Opening and reading text files. Here we have one text file, demo file.txt. In this file we have 3 lines of text. Hello, welcome to demo file.txt. This file is for testing purpose and good luck. So these are the 3 lines. Let's start. How to open a file. So open a file on a different location. अगर आपकी फाइल सेम लोकेशन पे है जहाँ पे आपकी पाइथन की फाइल सेव है, तो आपको पाथ सेट करने की नीड नहीं होती है, डायरेक्टली आप फाइल एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपकी फाइल डिफरेंट लोकेशन पे है तो आप पहले पाथ सेट करेंगे और यहाँ पे फाइल नेम .txt एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो फाइल यूज हो रही है वो है welcome.txt। R इज द मोड, दैट इज रीड मोड। इन द नेक्स्ट लाइन प्रिंट f.read। यहाँ पे हम रीड फंक्शन का यूज कर रहे हैं जो भी डेटा हमारी फाइल में उसको रीड करने के लिए। तो रीड फंक्शन क्या करते हैं, एक बार में ही कंप्लीट डेटा को रीड कर लेगा। ओके, नेक्स्ट रिटर्न द 5 फर्स्ट कैरेक्टर्स ऑफ द फाइल। अगर हम कुछ कैरेक्टर्स प्रिंट करना चाहते हैं 5 और 10, तो अकॉर्डिंग टू बाइट्स वी विल गिव द आर्ग्यूमेंट टू द रीड फंक्शन। Here you can see f equal to open demo file.txt r. F is a variable or file object. Open is a function that is used to open a file. Demo file.txt is the file name and r is the reading mode. Print is used to print the data. F.read. F is the file object that is called with read function. तो रीड फंक्शन क्या है, f जो भी ऑब्जेक्ट में हमारा डेटा स्टोर किया गया डेमो फाइल.txt का उसको रीड करेगा और फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देगा। ओके, रीड 2 लाइन्स ऑफ द कोड। अगर आप कंप्लीट लाइन्स को रीड करना चाहते हैं तो आपके पास फंक्शन है रीड लाइन। ओके, f इक्वल टू ओपन डेमो फाइल.txt r। f इज ए वेरिएबल और फाइल ऑब्जेक्ट। ओपन इज ए फंक्शन दैट इज यूज्ड टू ओपन ए फाइल। डेमो फाइल.txt इज ए फाइल नेम and r is the reading mode. Print f.read line, so it will print the first line, that is hello welcome to the demo file.txt. In the second time f.read line, it will print the second line, that is this file is for testing purpose. Okay, तो आप समझ गए किस तरह से हम टेक्स्ट फाइल को ओपन करेंगे और उसको रीड करेंगे। राइटिंग ए टेक्स्ट फाइल। अगर आप कोई टेक्स्ट फाइल लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट ए टेक्स्ट फाइल। Open the file demo file3.txt and override the content. We have just changed the name demo file to demo file 3 and we have the same data in the demo file 3. Okay, so f equal to open demo file 3.txt w. F is a file object, open is a function that used to open the file demo file 3.txt and w is the writing mode. Means we are going to write something in that file. F.write. F is a file object, write is a function that is used to write the data in the file. Oops, I have deleted the content. So this is a sentence that we are going to add in the file. And F.close. Close function is used to close the file. So all the changes have been applied. In the new line, open and read the file after the appending. Appending means we have changed the data or modify the data. Now f equal to open. Again we are going to open the same file demo file3.txt and read. Reading mode r. Now print f.read. So it will print the only one message. Oops, I have deleted the content. It will not show the previous content because it will overwrite the content. So as I told you in the previous class, write function is used to override the content.
मीन्स जो भी डेटा हमारी फाइल में पहले से एग्जिस्ट था वो डिलीट हो जाएगा, जो नया डेटा मेड करें उसमें सेव हो जाएगा. दैट्स वाई इट विल शो द आंसर ओनली. ऊप्स, I have deleted the content and it will not show the previous data. Okay. Now CSV file. So what is a CSV file? A comma separated value file is a delimited text file that uses a comma to separate values. Each line of the file is a data record. Each record consists of one or more fields separated by commas. जैसे हमारी टेक्स्ट फाइल होती है, ये भी उसी तरह से सेम फाइल है, हमारी टेक्स्ट फाइल की तरह होती है. इसमें जो भी कंटेंट हम लिखते हैं, राइट करते हैं, उसको कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमा सेपरेटेड वैल्यू और CSV फाइल. ओके, लेट्स सी वन एग्जांपल. एग्जांपल 1, रीड CSV फाइल विद csv.reader फंक्शन. सपोज वी हैव ए CSV फाइल विद द फॉलोइंग एंट्रीज. हमारे पास एक CSV फाइल, इसमें हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं. सीरियल नंबर, नेम एंड कंट्रीब्यूशन. सीरियल नंबर 1, नेम इज Linus Torvalds, contribution Linux kernel, Tim Berners-Lee, World Wide Web, Guido van Rossum, Python program. ओके, तो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, जो कॉमा के थ्रू सभी कॉलम्स को हम सेपरेट कर रहे हैं. तो हमारे पास नेक्स्ट टास्क ये आता है किस तरह से इसको हम रीड करेंगे. सो वी कैन रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल विद द फॉलोइंग प्रोग्राम. इम्पोर्ट CSV. CSV हमारे पास एक मॉड्यूल होता है. अगर हम CSV फाइल को रीड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें CSV मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा. ओके, विद ओपन innovators.csv. तो innovators.csv क्या हमारी CSV फाइल है. ओपन फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है फाइल को ओपन करने. R इज द रीडिंग मोड. ओके, एज फाइल, और इसको एज अ फाइल. तो हम इसको ओपन कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं जो innovators.csv है, ये इसमें हमारा कौन सा डेटा सेव है, सीरियल नंबर, नेम और कंट्रीब्यूशन वाली फाइल इसी नेम से सेव है. अब हम इसको फाइल को ओपन कर लिया. अब हमारे पास अगला टास्क क्या है, रीडर. रीडर इक्वल टू csv.reader. हमारे सबसे पहले यूज हो रही है फाइल ऑब्जेक्ट है. csv.reader, रीडर इज फंक्शन भी है यहाँ पे, जहाँ पे हमने क्या पास किया, फाइल. तो हम दो तरह से अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं. पहले हमारे पास कंटेंट में क्या लिखते थे, वेरिएबल, इसको हम फाइल ऑब्जेक्ट बोलते थे, इक्वल टू ओपन फंक्शन एंड फाइल नेम विद रीडिंग मोड और राइटिंग मोड. ओके, तो हम दूसरा भी हमारे पास क्या लिखने के लिए, विद ओपन. यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल या फाइल ऑब्जेक्ट को पहले ना लिख के सबसे बाद में यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फाइल. ओके, विद ओपन innovators.csv एज रीडिंग मोड एज फाइल. तो फाइल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट हो गया. जो भी डेटा इस फाइल में था वो फाइल नाम के वेरिएबल में, फाइल नाम के फाइल ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया. अब रीडर इक्वल टू csv.reader. आर्ग्यूमेंट में आप देख सकते हैं हम क्या एक्सेस कर रहे हैं, फाइल ऑब्जेक्ट को, दैट इज फाइल. तो रीडर हमारा क्या करेगा, उस फाइल को रीड करेगा. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके जितनी भी रो हैं हमारे डेटा में, उसको फॉर लूप के थ्रू 1 by 1 प्रिंट कर रहे हैं. फॉर रो इन रीडर. तो रीडर क्या है, एक फाइल ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारा पूरा डेटा स्टोर किया गया है. और रो क्या है, एक वेरिएबल है जो 1 by 1 एक एक रो प्रिंट करता है, प्रिंट रो. आप जानते हैं जो रो में जब तक हमारी करंट ट्रू रहती है, जब तक भी हम लेंथ सेट कर देते हैं, उस लेंथ तक वो एग्जीक्यूट का उसके बाद में रुक जाता है. तो देखते हैं आउटपुट. तो आउटपुट में आप देख सकते हैं किस तरह से ये लिस्ट में प्रिंट हो रहा है. सीरियल नंबर, नेम, कंट्रीब्यूशन. फर्स्ट लाइन. सेकंड लाइन 1 Linus Torvalds, लिनक्स कर्नल. सेकंड टिम बर्नर्स-ली, वर्ल्ड वाइड वेब. थर्ड गाइडो वैन रोसम, पाइथन प्रोग्रामिंग. तो इस तरह से हम एक CSV फाइल को ओपन कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं. ओके, नाउ ओपनिंग ए CSV फाइल. सेकंड एग्जांपल, रीड CSV फाइल हैविंग टैब डेलीमीटर. हम टैब डेलीमीटर के थ्रू भी यूज कर सकते हैं. टैब का मीनिंग ये होता है जिससे भी जो हमारे कॉलम सेपरेटेड थे, किसके थ्रू सेपरेट किए गए थे, कॉमा के थ्रू. हम कॉमा की जगह पे कॉमा ना लगाना चाहें तो सभी कॉलम्स के बीच में वन टैब इक्वल टू 8 स्पेस. ओके, तो 1 टैब का स्पेस छोड़ सकते हैं. फिर उस फाइल को हम किस तरह से रीड करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्ट CSV. पहले की तरह से हम सबसे पहले CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे विद ओपन फंक्शन innovators.csv एज अ रीडिंग मोड, एंड वी विल स्टोर दैट डेटा इन द फाइल ऑब्जेक्ट फाइल. रीडर इक्वल टू csv.reader फाइल. यहाँ पे हम फाइल को रीड कर रहे हैं. एंड डेलीमीटर क्या यूज कर रहे हैं, /t मीन्स टैब. इन द नेक्स्ट लाइन फॉर रो इन रीडर प्रिंट रो. प्रीवियस की तरह प्रीवियस फाइल जो है सेम डेटा हमारा आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा. बस डिफरेंस क्या था,
वहाँ पे जो फाइल थी हमारी कॉमा सेपरेटेड फाइल थी, यहाँ पे क्या था कॉमा की जगह पे हमने टैब यूज किया था, तो जैसे स्पेस आता है उस कॉलम को अलग कर देता है। ठीक है, नाउ अपेंडिंग ए फाइल। अपेंडिंग मीन्स होता है मॉडिफाई ए फाइल। तो अभी तक हमने सीखा किस तरह से हम फाइल को रीड कर सकते थे, राइट करने के लिए क्या रूल्स होते थे। अगर हमारे पास कोई फाइल्स पहले से एग्जिस्ट है और उसमें कोई डेटा लिखा हुआ है, पहले से लिखा है, अगर हम उसमें फिर से राइट करते हैं तो जो पहले का डेटा ओवरलैप हो जाएगा, मीन्स ओवर राइट हो जाएगा, पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा, नया डेटा स्टोर हो जाएगा। अपेंडिंग मीन्स होता है मॉडिफाई ए फाइल। जो हमारे पास पुराना डेटा है वो हमारी फाइल में सेफली रहेगा और नया डेटा भी उसके लास्ट में ऐड हो जाएगा। ओके, व्हेन यू ओपन ए फाइल इन W और राइट मोड, पाइथन ओवरराइट्स एन एग्जिस्टिंग फाइल और क्रिएट ए नॉन एग्जिस्टिंग फाइल। बात समझ में आई आपकी? जैसे आप W मोड में कोई फाइल ओपन करेंगे तो वैसे पाइथन क्या करेगा, उसको ओवरराइट कर देगा जो भी एग्जिस्टिंग फाइल है, और एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, इसमें आपको पुराना डेटा कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, सेकेंड पॉइंट, यू वांट टू राइट इनटू द फाइल व्हाइल रिटेनिंग द ओल्ड डेटा। अगर आप किसी फाइल को लिखना चाहते हैं और आप चाहते हैं तो आपका पुराना जो डेटा है वो भी उसमें बना रहे, देन यू शुड ओपन द फाइल इन ए और अपेंड मोड। तो आपको जो फाइल है ए मोड में ओपन करनी पड़ेगी, मीन्स अपेंड मोड में, जिससे कि आप डेटा को मॉडिफाई कर सकें और आपका पुराना डेटा भी सेव बना रहे। इन पाइथन, राइटिंग इन फाइल्स कैन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। फर्स्ट, इन एन एग्जिस्टिंग फाइल व्हाइल रिटेनिंग द कंटेंट। अगर आपके पास पहले से एग्जिस्टिंग फाइल है, आप उसका कंटेंट रिटेन करना चाहते हैं, सेव रखना चाहते हैं, तो आप वो फाइल यूज कर सकते हैं। सेकेंड, इफ द फाइल हैज बीन ओपन इन द अपेंड मोड। अगर फाइल हमारी अपेंड मोड मीन्स ए मोड में ओपन की गई, देन टू रिटेन द ओल्ड कंटेंट। सेकेंड, इफ द फाइल हैज बीन ओपन इन R+ और A+ मोड्स टू फैसिलिटेट द रीडिंग एज वेल एज राइटिंग। ओके, सेकेंड पॉइंट, to create a new file or write an existing file after truncating overwriting its old content। truncating means होता है overwrite करना। हम एक न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं जो हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग फाइल है, उसका डेटा ट्रंकेट करने के बाद, ओवरराइट करने के बाद। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, इफ द फाइल हैज बीन ओपन इन राइट ओनली मोड। सेकेंड, इफ द फाइल हैज बीन ओपन इन W+ मोड टू फैसिलिटेट राइटिंग एज वेल एज रीडिंग। तो यही डिफरेंस होता है, W में लिखते हैं रीडिंग मोड तो ओनली राइट करेगा, W+ करते हैं तो राइटिंग और रीडिंग दोनों एक साथ काम करते हैं। थर्ड पॉइंट, मेक श्योर टू यूज क्लोज फंक्शन ऑन फाइल ऑब्जेक्ट। और ध्यान रखिए जब भी आप कोई भी चेंजेस करें उसके बाद फंक्शन को क्लोज करना ना भूलें। फंक्शन को क्लोज करना बहुत ही कंपलसरी है। जैसे आप फंक्शन को क्लोज करते हैं वैसे आपका सभी डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है और फाइल क्लोज हो जाती है। इसके बाद आप फाइल में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते जब तक कि आप फिर से आप उसको रीओपन नहीं करेंगे। अपेंडिंग टेक्स्ट फाइल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है demo_file.txt। इसमें 3 लाइन्स लिखी हुई हैं, हेलो वेलकम टू demo_file.txt। सेकंड, दिस फाइल इज फॉर टेस्टिंग पर्पस। थर्ड, गुड लक। नाउ ओपन द demo_file2.txt एंड अपेंड कंटेंट टू द फाइल। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, जो सेकंड फाइल है उसको ओपन कर। सेकंड फाइल हमारी फर्स्ट फाइल, बस नाम चेंज है, ओनली डेमो फाइल की जगह पे demo_file2 लिखा हुआ है, दोनों ही सेम फाइल है। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, f = ओपन demo_file.txt a। अपेंड मोड में इसको ओपन किया हमने। नाउ f.write, नाउ द फाइल हैज मोर कंटेंट। तो यहाँ पे हो क्या, जैसे हमने इसको अपेंड मोड में ओपन किया, सेकंड लाइन में क्या राइट फंक्शन क्या कर रहा है, नाउ द फाइल हैज मोर कंटेंट, ये एक सेंटेंस तो हमारी फाइल में लिख रहा है। f.close, और f.close से हमने क्या अपनी फाइल को क्लोज कर दिया। ओके, जो फाइल ऑब्जेक्ट था उसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर राइट फंक्शन क्या करेगा, जो हमारा डेटा पहले से सेव है उसको में कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, उसको ओवरराइट नहीं करेगा, और उसके लास्ट में एक न्यू लाइन ऐड कर देगा। अगर हम इसको राइट मोड में ओपन करते तो उस फाइल को ये ओवरराइट कर देता, बट हमने यहाँ पे ए मोड में किया, मीन्स अपेंडिंग मोड में किया, तो ये उस फाइल को सेम रखेगा और उसके लास्ट में एक न्यू लाइन ऐड कर देगा। नाउ ओपन एंड रीड द फाइल आफ्टर द अपेंडिंग। अपेंडिंग में अगर फिर से आप फाइल को रीड करना चाहते हैं तो आप फिर से इसको ओपन करेंगे। f = ओपन demo_file.txt R means reading mode. Now print f.read and it will print the new file with new edit data. Now the plus function. What is the use of plus function? The plus function forces the writing of data on disk is still pending in output buffer. मीन्स जो भी हमने चेंजेस किए हैं अपनी फाइल में, तो उस फंक्शन अगर वो कभी कभी क्या होता है, जो चेंजेस हमने वो टाइमली सेव नहीं हो पाते हैं, टाइमली हमारी फाइल में राइट नहीं हो पाते हैं, मॉडिफाई नहीं हो पाते हैं, जैसे हम प्लस फंक्शन यूज करेंगे तो प्लस फंक्शन क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है और हमारे जो डेटा है
उसको उस फाइल में राइट कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। इसके लिए हम सिंटैक्स यूज करते हैं फाइल ऑब्जेक्ट डॉट प्लस, रिमूविंग बाइट स्पेस आफ्टर रीडिंग फ्रॉम फाइल। तो हमारी फाइल में जो भी बाइट स्पेस होते हैं उसको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं जब फाइल को रीड करते हैं, ठीक है। तो रिमूविंग बाइट स्पेसेस आफ्टर रीडिंग फ्रॉम फाइल, जब फाइल से हम रीडिंग करेंगे तो बाइट स्पेस को किस तरह से रिमूव करेंगे। इसके लिए हमारे पास 3 फंक्शंस हैं। देयर आर 3 मोड्स टू रिमूव बाइट स्पेस फ्रॉम फाइल। फर्स्ट वन इज स्ट्रिप। The strip removes the given character from both ends, means left and right. Example, fh equal to file. fh is a file object. File function is used to open the file and r is the reading mode. Line equal to fh dot read line. तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप सभी लाइन्स को रीड करेगा और इस लाइन में जो भी कंटेंट होगा उसको लाइन वेरिएबल में स्टोर कर दे। नेक्स्ट ए इक्वल टू लाइन डॉट स्ट्रिप। अब हमारे यहाँ पे लाइन डॉट स्ट्रिप फंक्शन क्या कर रहा है, उस लाइन में जो भी लेटर्स लिखे हुए हैं या जो भी वर्ड्स लिखे हैं उसके बस बिफोर और लास्ट मीन्स लेफ्ट और राइट में जो भी इस ब्लैंक स्पेस होंगी उसको डिलीट कर देगा एंड लेंथ ऑफ ए उसकी लेंथ शो कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उसमें स्पेसेस को मिलाने के बाद 10 कैरेक्टर्स आते हैं, ओके, और 4 उसमें स्पेस हैं। अगर हम स्ट्रिप फंक्शन यूज करते हैं तो 4 स्पेस को ये माइनस कर देगा, ओनली 6 आपका आंसर आ जाएगा, ओनली 6 कैरेक्टर्स को ये काउंट करेगा। Second is R strip. The R strip removes the given character from trailing end, that is right end. तो R strip क्या करता है, राइट एंड से आपके स्पेस को डिलीट कर देता है। एग्जाम्पल, fh इक्वल टू फाइल e poem.txt r। तो fh आपका फाइल ऑब्जेक्ट हो गया, फाइल इज ए फंक्शन दैट इज यूज्ड टू रीड द फाइल, नॉट इज द रीडिंग मोड। लाइन इक्वल टू fh डॉट रीड, यहाँ पर आप लाइन बाई लाइन रीड कर रहे हैं डेटा और लाइन वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट है इक्वल टू लाइन डॉट आर स्ट्रिप। तो आर स्ट्रिप क्या कर रहा है, आपकी लाइन में जो भी कंटेंट हो उसमें से राइट साइड के स्पेस को रिमूव कर रहा है, राइट स्पेस को रिमूव कर रहा है। लेंथ आप फाइनली आपको एक ही लेंथ मिल जाती है। एंड लास्ट वन इज एल स्ट्रिप। द एल स्ट्रिप रिमूव्स द गिवन कैरेक्टर फ्रॉम लीडिंग एंड दैट इज लेफ्ट एंड। fh इक्वल टू फाइल e poem.txt r, line equal to fh read line, a equal to line dot r strip. So it is wrong. It will not be R strip. It will be L strip. This is my. I'm sorry. This is my mistake. Okay. It will be L strip and length of A. So it will remove the left space before the text or space from the left side, and it will give the actual strength of the text with right space. Now, significance of file pointer in the file handling. Okay, every file maintaining a file pointer which tells the current position in the file where writing or reading will take place. तो फाइल पॉइंटर का काम क्या होता है, ये हमें बताता है कि जो हमारा करंट सिचुएशन में, करंट पोजीशन में हमारा कर्सर कहाँ पे है, हम कहाँ पे लिख रहे हैं और कहाँ पे रीड कर रहे हैं, ये पॉइंट आउट करता रहता है। सेकेंड, दिस ऑपरेशन टेक्स प्लेस एट द पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। ये जो भी ऑपरेशन हैं ये फाइल पॉइंटर पे ही स्टार्ट होते हैं। फाइल पॉइंटर एडवांसेस बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स। और फाइल पॉइंटर क्या करता है, जो भी नंबर्स ऑफ बाइट्स हम स्पेसिफाई करते हैं ये डायरेक्टली हमारे फाइल पॉइंटर को वहीं पे लोकेट कर देता है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स। तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, रीड्स फ्रॉम द कीबोर्ड्स। जितने भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है वो सभी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस में काउंट की जाते हैं क्योंकि इनपुट देने के लिए यूज की जाती है। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस प्रिंट्स टू द डिस्प्ले, फॉर एग्जांपल मॉनिटर और प्रिंटर। स्टैंडर्ड एरर डिवाइसेस STD-ERR, सेम एज STD आउट बट नॉर्मली फॉर एरर्स। ये भी स्टैंडर्ड आउटपुट की तरह होती हैं ओनली, बट ये ओनली एरर्स के लिए शो की जाती है। नोट, दीज स्टैंडर्ड डिवाइसेस आर इम्प्लीमेंटेड एज फाइल्स कॉल्ड स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स टू यूज स्टैंडर्ड डिवाइसेस इंपोर्ट सिस मॉड्यूल। अगर आप स्टैंडर्ड डिवाइसेस को यूज करना चाहते हैं तो आप सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट कीजिए। इफ यू इंपोर्ट सिस मॉड्यूल इन योर प्रोग्राम देन sys.stdin.read फंक्शन वुड लेट यू रीड द फ्रॉम कीबोर्ड। अगर आप sys.stdin.read फंक्शन यूज करते हैं तो आप कीबोर्ड से डेटा रीड कर सकते, जो भी डेटा आप यहाँ पे इनपुट करेंगे वो आपका रीड हो जाएगा। नेक्स्ट, sys.stdout.write would let you write on the standard output device, the monitor. Next, the sys stdin is always open in read mode, but
This is std_out is always open in the write mode. Absolute and relative paths. तो absolute और relative paths हमारे क्या क्या होते हैं? The full name आप फाइल और डायरेक्टरी is called a path name. Second, the absolute path are from the topmost level of the directory structure. The dot relative paths are relative to the current working directory, denoted as a dot. For example, E accounts history cache.act. तो यहाँ पे E हमारा क्या है? रूट डायरेक्टरी है. तो रूट डायरेक्टरी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ. ओके. और कैश इज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी और अवर फाइल. तो कैश इज द रिलेटिव पाथ, cache.act. So we can identify this by dots. In the root directory always comes 2 dots, that you can see after E. But in the relative paths there will be only 1 dot, that is cache.act. Okay. Thank you students. In the next class we will do some programming work. Okay.